and the ball pitched in the center of the wicket, then behind the keeper and the third one behind the boundary. वेस्ली हॉल की चर्चा जारी रखेंगे प्रेम. So that is one such delivery which was very well known that happened in Barbados. As the last delivery, Anderson comes and bowls, and this ball is again, that's a good one. Teasing delivery outside the off stump, probing delivery, and Rahul had absolutely no clue. Lucky that the ball didn't take an edge, and that marks the end of the over, and the score reads 17 for the loss of no wicket India. धन्यवाद प्रेम, धन्यवाद संजय बनर्जी. और वेस्ली हॉल के बारे में दो तीन बातें जो मुझे हमेशा याद रहती हैं कि वो लंबे ऊंचे कद के थे, गार्नर के लिए भी, और वो ये कहते थे इतना लंबा बॉलिंग रनअप है आपका, जब तक गेंद हमारे पास पहुंचती है बैट के पास हम आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं. तो एक तो ये वो किस्सा है, और एक वो जोल गार्नर जब बॉलिंग करते थे. हालांकि अब तो न्यूजीलैंड के वो खिलाड़ी जेमिसन ऐसे आ गए हैं कि उनको टक्कर देते हैं हाइट के मामले में, लेकिन ये कहते थे कि साइड स्किन इधर उधर दाएं बाएं ना सरकाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि हाथ इतना ऊपर से आता था. ये इस तरीके की मजेदार किस्से हैं क्रिकेट के. इस बीच वुड नए ओवर की शुरुआत करते हुए उनकी ये गेंद मिडिल स्टंप पर ड्राइव किया सीधे बल्ले से. एक विशेष बात, जबकि 17 रन बगैर नुकसान के ये 8वां ओवर शुरू हुआ है भारतीय पारी का. भारत अब केवल 10 रन पीछे रह गया है पहली बारी के आधार पर. राहुल 24 गेंदों पर और रोहित 12 रन 20 गेंदों पर. और वुड ने अपने 2 ओवर में, ये दूसरा ओवर चल रहा है जिसकी ये पहली गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी बाहर की ओर मूव करती हुई जाती हुई गेंदें करते रहे हैं. और एंडरसन ने पेविलियन एंड से, वुड नर्सरी एंड से बॉलिंग कर रहे हैं. हालांकि रॉबिन्सन में भी कुछ ओवर्स आज डाले हैं जो कि उन्होंने नर्सरी एंड से किए थे. 2 ओवर 1 मिनट 7 रन, कोई रन नहीं. So it's Mark Wood, of course, who's continuing. He's bowling his second over at the moment. The next delivery to Rohit Sharma is outside the off stump, left alone by the Indian opener. He's batting on 12. There's no runs that he scored off the previous delivery. 12 of 21 for Rohit Sharma. And Vinny, just reminding everyone of Rohit Sharma's batting in the first innings where he scored 83. The fact that he was circumspect initially, and then after the first 15 odd overs, when the opportunity came around and when Sam Curran came on to bowl, Rohit Sharma did let loose. 6 चौके जड़ दिए थे उनकी गेंदों पर करन को आनन फानन में. एंडरसन की गेंद इस बार ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव किया, मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को उठाया है. और आज सुबह की उल्लेखनीय बात रमन यही है कि जिस तरह से जो रूट स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ खेल रहे थे, अगर आप देखेंगे वी में सामने मिड ऑफ मिड ऑन में 8 रन से ज्यादा नहीं बनाए हैं. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने आज स्ट्रेट शॉट्स तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्यादा खेले. Absolutely, Vineet. And one of the reasons for that is the length at which the England bowlers have bowled is a little fuller. So at times when you're looking for swing, you want to pitch the ball up, and at times you might end up giving the odd half volley, which can be driven. It's not that Rohit Sharma or KL Rahul have actually looked to hit hard. They've played defensively and still managed to get the runs. In the meantime, the next delivery from Mark Wood is a little back of length, rises up. Rohit Sharma on the front foot tries to play the drive. Can't really force the ball away past the fielder at mid-off. It's a dot delivery. और दूसरी उल्लेखनीय की बात आज सुबह के खेल में यह रही है कि हर इंग्लैंड का खिलाड़ी गेंद को उठाते ही साफ करने में जुट जाता है. बड़ी मेहनत की जा रही है. खुद कप्तान अपनी स्लीव को आगे खींच के, अपने आस्तीन को आगे खींच के बॉल को साफ करते हुए कई मर्तबा नजर आए हैं. Yes, they're trying to. A lot of times teams have just one player who's designated Yes. as the ball shiner, and it's his job. And more often than not, you would find Anderson, who's standing at mid-off, to be the one doing that. But for the moment, it's Wood who comes in, angles this one into Rohit Sharma, who plays it defensively. No runs for the taking. So more often than not, there's that one designated ball shiner, coming back to the point, who's either at mid-off or at mid-on. And everyone's supposed to give him the ball. And he's the guy who decides which side of the ball needs to be shined. और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. सचिन तेंदुलकर लंबे समय तक द ऑफिशियल शाइनर ऑफ द क्रिकेट बॉल इन इंडियन क्रिकेट. और डॉन सिबली को वैसे निर्धारित किया गया है, मनोनीत किया गया है कि वो ऑफिशियल. लेकिन मुझे लगता है कि एक जो जज्बा, भावनाएं इस समय इंग्लैंड के खिलाड़ियों में है, उनको लगता है, उम्मीद है, क्योंकि भारतीय टीम बहुत भरोसे के साथ विदेश में बैटिंग नहीं करती है. हालिया प्रदर्शन भी ऐसा रहा है. वुड एक बार फिर दौड़ते हुए स्टंप्स के पास से उनकी ये गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप की इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से रक्षात्मक रूप से खेल दिया. और ये मेडन ओवर समाप्त हुआ. अभी भी 10 रन का फासला है.
तो ये क्रिकेट की तमाम खूबियां हैं और ये गेंद ड्यूक बॉल शुरू में जैसा कि हम बार बार बताते रहे हैं ज्यादा स्विंग नहीं करती, लेकिन 10-15 ओवर के बाद काफी स्विंग करती है, क्योंकि मैदान पर जो मॉइस्चर होता है वो इंग्लैंड में ज्यादा होता है और वो गेंद पे चिपक जाती है और इसको बचाने के लिए कुछ अतिरिक्त उस पर लेकर होता है। और ये सुबह की जो नमी होती है, और ये तो अब अगस्त का महीना हो चुका है और लगभग 2/3 इंग्लिश सीजन हो चुकी है, क्रिकेट सीजन हो चुका है। लेकिन पहले जब अगर आप जल्दी अर्ली पार्ट ऑफ द समर में इंग्लैंड में चले जाएं तो आपका बैट खराब हो जाता है। जब गेंदें आके टकराती हैं, नम गेंद आपके आके टकराती हैं, आप नेट्स में जाते हैं, आपका नया नवेला बैट बिल्कुल बेकार हो जाता है। Absolutely, because the ball picks up that kind of moisture and it's constantly hitting the bat. So probably carry a few extra blades with you when you're traveling. आपने देखा होगा पहले टेस्ट में जब बारिश आई और एंडरसन ने जिद करके अंपायर के ऊपर दबाव बना के भारतीय खिलाड़ियों को बाहर जाने से रोक दिया था। एंडरसन नए ओवर की शुरुआत करते हुए पेवेलियन एंड से एक गेंद जो काफी ज्यादा उछली, लेट मूवमेंट था, लेकिन ऑफ स्टंप के इतनी ज्यादा बाहर थी कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। 3 स्लिप है और एक बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है। ये गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच के क्षेत्र में एक खिलाड़ी फील्ड कर रहा है। तो जब बारिश से में जाने से पहले उनको रोक लिया था तो स्वेटर के अंदर अपने बैट को छुपा रहे थे, और कौन? भारतीय टीम का बालक ऋषभ पंत। Well, of course, that's your most prized possession, isn't it? Every batsman would like to protect the willow that they're batting with as much as possible. For the moment, though, it's KL Rahul who's on strike. He's batting on 4. Once again, circumspect. He's looked very confident. As the next delivery from Anderson is pitched up and Rahul drives, but only as far as mid-off. There's no run for the taking. It's gone straight to Sam Curran. So India still trailing by 10 at the moment. Yesterday, James Anderson was peppered with a few short of length deliveries by Jasprit Bumrah. When I say few, let me say quite a few. And I'm sure he's kept tab, hasn't he? काफी चर्चा का विषय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों यॉर्कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो योजनाबद्ध था। वो जानबूझ के जिस तरह से भारतीय बॉलर्स के खिलाफ विदेशी बॉलर्स करते हैं, उस तरह से उन्होंने भी कहा कि इनको कुछ परेशान किया जाए। जान ले रखी है भारतीय बैटिंग की, तो क्यों नहीं इनको भी कुछ शॉर्ट गेंद से पेपर किया जाए। So as they say, giving the taste of their own medicine. हाँ बिल्कुल, इनको जरा चखाया जाए कि ये कैसा महसूस होता है जब बॉलर को इस तरह की खतरनाक गेंदें मिलती हैं। ये गेंद थोड़ी नीची रह रही थी, मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी, इत्मीनान से उसको आने भर दिया और बहुत ही रक्षात्मक रूप से उसको पूरी सावधानी के साथ संभल कर सधे हुए हाथों से वहीं सामने की ओर लुढ़का दिया। लेकिन एंडरसन सभी उनकी बॉलिंग से जरूर प्रभावित हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी नहीं है जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। कल खेल की समाप्ति पर एंडरसन जब जा रहे थे तो बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से जाके उनके कंधे पे हाथ रखा था बुमराह ने, लेकिन वो तो बड़बड़ा रहे थे कुछ न कुछ। जी काफी कुछ कहने के लिए था ना, आउट भी हो गए थे। Well, for the moment, the next delivery is pitched up and it's been square driven towards the backward point region. It's going to be a single for KL Rahul that's going to take him to 5. So I think he's waiting, is KL Rahul. What he did so well, the centurion of the first innings, what he did so well in the first innings, he's just trying to follow the same template now in the second innings as well. और हालांकि ऊपर थोड़ी बदली चाहिए, काली घटाएं हैं जरूर, लेकिन पहली इनिंग्स में जिस तरीके की बॉलिंग देखने को मिली, दूसरे इनिंग्स में मिली मैच की, उतनी ज्यादा स्विंग और सीम का मूवमेंट अब तक तो नहीं दिखा है। The surprising part is that they took Ollie Robinson out of the attack very early. James Anderson, of course, is bowling his 5th over right now. As he comes in, bowls the next delivery to Rohit Sharma. Rohit Sharma forward in defence, pushes it out into the covers. No runs. But that's the surprising part. Mark Wood introduced too early, very early into the attack. And probably, is there a thought, Vineet, that the England captain Joe Root is trying to back the bowler with a little extra yard of pace to get through the defenses of these two openers? क्रिकेट पंडित जो इंग्लैंड में हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये अब मैच वुड का हो सकता है, और आप जो बात कह रहे हैं वही, जो अतिरिक्त पेस उनके पास है और ऐसी पिच पे जो सूखी ज्यादा है, कटर्स बड़े अच्छे चल सकते हैं। एंडरसन की अगली गेंद पलटकर अंदर की तरफ आती हुई, लेकिन ऑफ स्टंप के फिर भी बाहर ही रह गई। अपने स्टंप्स को देखा, पलटकर गेंद को जाते हुए देखते रहे और गेंद जाके समा गई बटलर के ग्लव्स में। तो ये बड़ा दिलचस्प है रमन की नो बॉल, 13 नो बॉल बुमराह का, ये भी एक चर्चा का विषय कल रहा है। कुल मिलाकर 17 नो बॉल भारत ने की और 13 उन्होंने की। जहीर खान के रिकॉर्ड की बराबरी की, एक पारी में सबसे ज्यादा नो बॉल किसी भारतीय बॉलर द्वारा। और मैं समझता हूं कि वो पुरानी बीमारी कहीं वापस ना आ जाए बुमराह की, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर उखड़े उखड़े से थे बुमराह। आपको क्या लगा? I just feel that there are times when you're striving for that extra yard of pace. Maybe you're just not
in the kind of rhythm in your run-up. And that shows not just in terms of your bowling, where you're not able to get the Yorkers in, which you're known for. You're also not able to get your run-up right, and the landing of your load-bearing foot. At times you overstep, and that's what happened to Bumrah yesterday. एंडरसन ने दौड़ना शुरू किया, वुड ने दौड़ना शुरू किया और उनकी गेंद पटकी हुई गेंद बाउंसर स्टंप्स के ऊपर से निकलती हुई सर को झुका लिया, कलाइयों को झुकाया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के ग्लव्स में। नए ओवर की शुरुआत हुई। एंडरसन 5 ओवर 2 मेडन 5 रन, कोई सफलता नहीं। रॉबिन्सन 2 ओवर 1 मेडन 7 रन, कोई सफलता नहीं। और वुड का ये तीसरा ओवर है, 1 मेडन, उन्होंने 6 रन दिए हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, और इसमें कुछ दम भी हो सकता है, कि नो बॉल भी जानबूझ के की गई, जितनी आगे से हो सके उतनी आगे से बाउंसर लगाई जाए एंडरसन को। और ये तेज बॉलर्स का हिस्सा रहा है, भारत ऐसा नहीं करता है, और पता नहीं क्यों बुमराह के इस इंसिडेंट को और इस घटना को इतना तूल दिया जा रहा है, जबकि विदेशी बॉलर तो ये अक्सर करते हैं भारतीय बॉलर्स के खिलाफ। Oh, in the meantime, the next delivery, and this is shaping away from KL Rahul. Has it taken the outside edge? It has. It's nestled itself into the gloves of the keeper. KL Rahul is gone. He's out for 5, and Mark Wood strikes. India are 18 for 1. बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिल गया है। वुड की जो चर्चा यहां कमेंट्री बॉक्स में हो रही थी, जस्ट बैक ऑफ द लैंड, टप्पा खाने के बाद अच्छी ऊपर कमर की ऊंचाई की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, कोई बहुत ज्यादा फुटवर्क दिखाया नहीं, केवल हाथों को आगे बढ़ाया, बाहरी सिरा लगा बैट का, और बटलर द्वारा कैच आउट हुए। 30 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए, कोई बहुत बड़ा स्कोरिंग स्ट्रोक उन्होंने खेला नहीं, और इस तरह से एक बहुत ही कीमती विकेट इंग्लैंड को मिल गया है। The move has worked. As simple as that for England. Joe Root relying on that extra yard of pace that Mark Wood is able to generate. The ball hitting the deck, just shaping a little away from the right-hander. KL Rahul squared up, got the outside edge, and in the end it was a simple catch for Butler. और रोहित और राहुल लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ने ही वाले थे आगे पीछे। लगातार बड़ी पारियां, बड़ी साझेदारियां वो निभा रहे थे। पता नहीं लॉ ऑफ एवरेजेस रूट को नहीं पकड़ते हैं। Well, it's interesting you mentioned Joe Root. Most centuries by a England captain in a year, and there was a stat that was provided by Manoj Kumar. The fact that he scored 5 centuries in this calendar year 2021, including 2 double hundreds. So probably yes, the law of averages don't apply to Joe Root. और मनोज ये भी बता रहे हैं कि कप्तान की हैसियत से कितने ज्यादा उन्होंने 150 प्लस के स्कोर्स किए हुए हैं। क्या खिलाड़ी है, और अगर क्रिकेट खेले तो ऐसा खेले। Well, they say another thing which is called the commentator's curse. So Joe Root has to bat when England will come out in the second innings. Who knows? लेकिन वुड, जैसा कि अंदेशा था कि इनके पास अतिरिक्त रफ्तार है, वो इस विकेट पर ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। एक लेग कटर की तरह गेंद, थोड़ा सा मूवमेंट, बहुत ज्यादा प्रोनाउंस नहीं, बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं, लेकिन था। और अपने बैट को ना मालूम क्यों जो पहली इनिंग्स में कतई नहीं किया उन्होंने, लगभग 47% गेंद छोड़ते रहे थे, इसको खेलने की कोशिश की। और फिर दूसरी बात यह है कि या तो आप पूरी ताकत से उसको खेलें, या आप उसको छोड़ दें। एक हाफ हार्टेड, जिस तरह से कोहली खेले, जिस तरह से रहाणे खेले, जिस तरह से पुजारा खेले, उसी तरह से आज राहुल खेले। एक डिफेंसिव स्ट्रोक मात्र, उससे कुछ निकलता नहीं, बजाय सिर्फ इसके अलावा कि वो गेंद कैच के रूप में स्लिप कॉर्डन में चली जाए। Right, the new batsman at the crease now is Chiteshwar Pujara. He's on strike as in comes Mark Wood with the next delivery. This is angled in. Pujara plays it defensively towards mid-wicket. No runs for the taking, but it's interesting, Vineet, they've put a fielder at forward short leg as well, along with 2 in the slip cordon. फॉरवर्ड शॉर्ट लेग का फील्डर बहुत जरूरी है, और उससे एक दबाव बनता है, कई तरीके का दबाव बनता है। और ये अतिरिक्त बाउंस भी था, रमन उस गेंद पर कुछ ज्यादा उछल गई थी, उससे वो चौंक गए थे, और फिर उस स्थान को देख रहे हैं जहां से गेंद ये अप्रत्याशित रूप से ऊपर ज्यादा उठ गई थी। मेरे को लगता है बाउंस से भी ज्यादा चकमा खाई, लेकिन बैट तो आगे बढ़ ही रहा था। Absolutely. When you're squaring up, when you're not in line with the ball, then your bat tries to follow the line of the ball, and that's why he edged it. Meanwhile, next delivery from Mark Wood, it's short, it's rising, and Chiteshwar Pujara somehow just veers out of the line of that delivery, and it goes through to the wicketkeeper. So the extra yard of pace that Mark Wood is generating, consistently bowling at over 140 k's per hour. जब एक विकेट मिल जाता है तो वो टॉनिक का काम करता है, आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लग चली जाती है, आपका हौसला बुलंद हो जाता है। लेकिन वो जो हशीब हमीद खड़े हुए हैं
शॉर्ट लेग पर, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि एक दिमाग में झांसा देना कि गेंद कुछ शॉर्ट होकर ऊपर की तरफ आएगी, आप फेंट करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे तो उठेगी, या आप ठीक से नहीं खेल पाएंगे। तो एक और दुविधा पैदा करने के लिए दिमाग में भी उसका एक मानसिक दबाव भी होता है। अगली गेंद सीधी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसकी खेलने की कोई कोशिश पुजारा ने नहीं की। तो पुजारा के लिए दिस इज द इनिंग्स रमन, और उनको साबित करना है अपने आप को कि ये जो पारी है इसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लें और सब कुछ झोंक कर बैटिंग करें, क्योंकि उन खतरे की घंटी उनके ऊपर बज रही है। Absolutely, he's got 18 hundreds in Test match cricket, 29 half centuries, the best of 206 not out for the 33-year-old Chiteshwar Pujara. For the moment, he's got to contend with Mark Wood, who's really ramping up the pace. The delivery where he got the wicket was clocked at 151 kilometers per hour, where he got KL Rahul out in this over. He comes in again, last delivery of the over. This is outside the off stump. Pujara lets it go through to the wicket-keeper, doesn't offer a shot, and the end of a wicket-taking over for Mark Wood. दिलचस्प क्रिकेट। Indian Maritime University, a central university under Government of India, offering various UG and PG courses in the maritime sector. UG programs in marine engineering, nautical science and naval architecture. PG and research programs in naval architecture, marine engineering and management. Campuses located in Chennai, Visakhapatnam, Kolkata, Mumbai and Kochi. For admissions and program details, please visit www.imu.edu.in. तो वुड का बहुत बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने विकेट ही नहीं लिया और राहुल को पेविलियन का रास्ता दिखाया, बल्कि कोई रन भी नहीं दिया। तो 3 ओवर 2 मेडन, 6 रन और 1 विकेट, यानी कि विकेट मेडन। And remember, India are still trailing by 9 runs compared to England's first innings score of 391. Meanwhile, start of a fresh over, first delivery that is outside the off stump, and shouldering arms is Rohit Sharma. Doesn't offer a stroke to that delivery from James Anderson. But Mark Wood, yes, he's racked up the pace. He's, as I said before in that previous over, 151 kilometers per hour. The delivery that got KL Rahul out. You talked about the bounce. He bent his back, put in the extra effort, reaped the reward as well. Next delivery. And it's worked away for runs here towards square leg. They've got one. By the time Moeen Ali can pick the ball up and fire the throw in. It's a wayward throw, but still 2 more to Rohit Sharma. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेल दिया था। और वुड जो अपने पूरे करियर में अपनी टखनों की, पैरों के टखनों की चोट से बड़े परेशान रहे हैं, और उसके बाद से बड़ी अजीब सी बात है कि बॉलिंग रन अप लंबा किया और उसके बाद से इंजरी उनको नहीं हुई है, लेकिन रफ्तार बहुत है। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा 95-96 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। क्रिकेट में वो हमेशा एक चैलेंज रहा है, एक चुनौती रही है, द 100 माइल बैरियर, और उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं वुड। अच्छे खौफनाक तेज बॉलर। It's interesting you mentioned that he lengthened his run up. I remember Shoaib Akhtar once saying that an aircraft needs the runway to take off. So maybe that's the thought. अगली गेंद और उसमें कोई रन नहीं मिलेगा। 10.3 ओवर का ये गेल है। इस बीच इस रन के बारे में सोच रहे हैं और ले भी लिया, 1 रन मिला वहां पर, और बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट। एंडरसन का ये 6वां ओवर है, 2 मेडन, 8 रन, अब तक विकेट नहीं मिला है। वो पेविलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, और वुड को जो सफलता मिली, वो जो एकमात्र सफलता है, राहुल को उन्होंने आउट किया। एक बाहर जाती हुई, उछलती हुई गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर बिला वजह खेल बैठे राहुल, और यही सारे अंक उस समय बॉलर को ही देने पड़ते हैं, झांसा देना, जबकि इंग्लैंड की ये रणनीति का विशेष हिस्सा है। गेंद को बार बार अंपायर को दिखा के बदलते रहना और दिखाते रहना उनको, और एक गेज जो हमेशा से बरसों से हम देख रहे हैं, एक ऐसी गेज जिसमें से एक को गेंद को निकल जाना चाहिए, एक में से, दूसरे में से नहीं निकलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो गेंद सही है। Well, I think I could see Moeen Ali having a little chat with the umpire, asking which one of the gauge is which, मुझे कई बार लगता है कि जब सिक्का उछाला जाता है टॉस का, और हालांकि मैच रेफरी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, वो बड़े ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व होता है मैच रेफरी का, लेकिन जब सिक्का बहुत ज्यादा दूर उछल जाता है, मुझे लगता है कप्तान को साथ चले जाना चाहिए। 3 स्लिप तैयार है, एक शॉर्ट लेग है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक स्क्वायर लेग है। अगली गेंद अचानक ऊपर उठी, लगभग उसी तरीके की गेंद जिसपे पहली इनिंग्स में आउट हुए थे। पुजारा के लिए अप्रत्याशित रूप से अचानक ऊपर उठती हुई गेंद, अपने आप को पीछे धकेलते हुए, बैट को आगे बढ़ाते हुए जैसे तैसे नीचे रखा उसको।
That was 140 kilometers per hour. That delivery from James Anderson, who's known more for his swing. I think he's, you talked about the tonic that he got yesterday from Bumrah, the short of length deliveries. I think he's just kept a mental note of that. And I think he wants to return the favor now. सिबली गली में आगे बढ़ते से रहते हैं, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज से एक कदम पीछे और मुश्किल से 10 गज के फासले पर ऑन साइड ऑफ साइड में, और इस बार ज्यादा विश्वास के साथ अपने स्टंप्स को कवर किया. यह दर्शाया कि उनको मालूम है उनका ऑफ स्टंप कहां है, और इत्मीनान से उसको बिना घबराहट के, बिना किसी हड़बड़ाहट के छोड़ दिया और पलट कर देखा कि गेंद किस तरह से मूव करके विकेट कीपर के ग्लव्स में जाकर ठहर रही है. तो बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट है ये. टू डाल में पात वाला मामला है. जितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है, भारत को उससे बेहतर बैटिंग करके इस मैच को बचाना है. ये सत्र 2 घंटे का बहुत महत्वपूर्ण है. Absolutely. And the other thing is there's some variable bounce, extra bounce that's noticeable when the ball is hitting the length, which is a little worrying for the batsman. और बहुत तारीफ करनी होगी एंडरसन की कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं पेवेलियन एंड से, गेंद खुद ब खुद लेग स्टंप की तरफ खींची चली जाती है स्लोप से, उसके बाद भी वो ऑफ स्टंप के बाहर से गेंदों को निकाल रहे हैं. आमतौर पर लॉर्ड्स में अगर आपको दाएं हाथ के बैट्समैन को छोड़ती हुई गेंदें करनी है तो बॉलर को लगाया जाता है नर्सरी एंड से, लेकिन ये इतना तजुर्बेकार, इतना अनुभवी बॉलर है, आप चाहे जहां उनको लगा लें, वो जैसे चाहें वैसी बॉलिंग कर सकते हैं. He's definitely leading the pack, albeit the wicket has gone Mark Wood's way. But England are looking threatening at the moment in the way they've bowled. That very slender lead of 27 runs. Remember that lead of 27 that England got in the first innings hasn't been surpassed by India so far. They're 21 for 1. Still trailing by 6. Now 9 wickets in hand. This is not going to be an easy morning session for India to get past. 27 रन की जो लीड शुरू में थी वो बड़ी भारी सी दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में वुड दौड़े चले जा रहे हैं दन आते हुए. उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स पर आ रही थी, कलाइयों को ऊपर कर रखा था. अंतिम समय में बैट को आगे बढ़ाकर धीरे से पुश बर कर दिया. अब आसमान कुछ साफ, विशेष करके पेविलियन के ऊपर रुईदार सफेद बादल और बिल्कुल नीला आकाश. But it's going to be a challenge for the batsman, albeit there's not much cloud cover, as you said, Vineet. But the fact is that there's some variable bounce and some extra pace which the England bowlers are able to generate. Remember, this is day 4 of the test match. It's a 3-day-old pitch, and yet the England bowlers bending their back, extracting more bounce than what we've seen the Indians extract so far. स्कोर कार्ड में ये नहीं लिखा जाएगा कि कल तीसरे दिन जो बैटिंग इंग्लैंड ने की, लगभग पूरे दिन धूप खिली हुई थी. ये स्कोर बोर्ड में नहीं आएगा. इस बीच ये गेंद और उसको जो ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा भारतीय अपने जगह खड़े खड़े कट करने के अंदाज में खेला. किस्मत वाले हैं, गेंद ज्यादा ऊपर हवा में नहीं उठी, तो कुछ एकाग्रता बीच में भंग रोहित की भी हो रही है. राहुल से जोड़ी उनकी टूटी है. भारत 1 विकेट खो चुका है. 21 रन का स्कोर है. ये 12वां ओवर है जिसकी 2 गेंदें हुई हैं, और अब अपनी एकाग्रता बनाने के लिए या जो भी कारण हो, अब जूते के फीते एक बार फिर बांधने का प्रयास किया जा रहा है रोहित शर्मा का. कुछ समय अपने लिए जुटा रहे हैं, थोड़ा कुछ सोचने की मुद्रा में है कि किस तरह से बैटिंग करनी है. Absolutely. The times that batsmen tend to do this, maybe take a guard a second time just to try and refocus your thoughts. Rohit Sharma ready to take strike once again. रोहित तैयार इस गेंद के लिए. बैट को ऊपर हवा में उठा रखा है. अब बैकलिफ्ट में उन्होंने अपने ट्रिगर मूवमेंट उनका हमेशा पीछे की तरफ होता है, और इसको घूम को पुल और हुक का मिला जुला स्ट्रोक खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में, और ये रहा न्यूज ऑन AIR सिक्सर. Cracking shot. First 6 of the innings. And I think he was steadying himself just for this kind of a delivery that would be a little short. And he's picked the length beautifully as Rohit Sharma. Just a little shuffle across his stumps. Picked the length. There was a fielder back at deep square leg. There was a fielder back at long leg as well. He takes the boundary riders on and hits a 74-meter long 6. Beautifully hit. बहुत बढ़िया स्ट्रोक. रोहित शर्मा ने शायद ये फैसला किया है कि जिस तरह से वुड हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास बहुत रफ्तार है, और जितनी तेजी से गेंद आती है उतनी तेजी से जाएगी अगर टाइम किया जाए. इस बीच ये अगली गेंद, और इस बार उसको घूमे जरूर लेकिन बैट को अलग रखा. जिस तरह से पिछला शॉट खेला था उसी तरह से एक पैर पर घूमकर फिरकी होते हुए जाते भर देखा, विकेट कीपर के पास जाते हुए छोड़ दिया उस गेंद को, और उस पर कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेला. 27 रन 1 विकेट पर, लीड पूरी हो गई. The typical comeback from the fast bowler after being hit for 6, bangs another delivery shot. This time it's just too short,
albeit it was 146 kilometers per hour, that delivery clocking fair bit of pace. But Rohit Sharma saw that he was not able to get on top of that ball to play the shot and therefore let it go. रोहित शर्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं अगली गेंद की। अब तक 2 चौके 1 छक्का है इस पारी में। 27 रन में भारत ने राहुल को खो दिया है। सुबह सवेरे ड्राइव किया, 2 फील्डर्स के बीच में से एक्स्ट्रा कवर की तरफ उसको ड्राइव करना चाहते थे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया, बहुत हल्के हाथों से खेला था उस स्ट्रोक को। लेकिन रोहित शर्मा का ये जो उदय हुआ है विदेशों में ओपनिंग बैटिंग करने के लिए, जो उन पे आक्षेप लगाया जाता था, तो अब तक 2021 में उन्होंने 9 टेस्ट मैच में 17 पारियों में, मनोज बता रहे हैं, 48 के औसत से 681 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक हैं। तो रोहित के लिए सबसे बड़ी खूबी की बात रमन क्या है कि वो एक ऐसे बैट्समैन है जो गियर 1 सेकंड में बदल सकते हैं और विकेट के चारों ओर खेलने की क्षमता रखते हैं। तो जब इस तरीके का बैट्समैन होता है तो अगर गेम में जरूरत है रणनीति बदलने के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी किस तरह से डिफेंसिव अपने प्ले को डेवलप किया। Absolutely. Meanwhile, the last ball of the over, it's again short. It's been pulled away. There's a boundary rider on the deep. It's been taken by Moeen Ali. Rohit Sharma will have to go back to the pavilion, and Mark Wood and England rejoice. India are 27 for 2. Rohit Sharma falls into the trap that was set for him. A short of length delivery, 2 boundary riders on the onside. Deep square put specially for that kind of shot, and Rohit finds the fielder in the deep. उसको हुक करना चाहते थे, हुक किया भी, और वहां पर मोइन तैयार थे। उनको अपनी बाईं तरफ तेजी के साथ जाना था, थोड़ा नीचा कैच हो गया था, फिसलते हुए कलाबाजी खाते हुए गोल घूम गए घास पर, लेकिन कैच को छोड़ा नहीं। और बैट पे वो स्ट्रोक खेलने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा मैं कैच आउट हो गया, अपने बैट के सबसे निचले हिस्से के टो को संभाल रहे थे रोहित शर्मा। जो भी हो, उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया, उपहार स्वरूप दे दिया। कॉटली बोलवुड आउट होकर पेविलियन में जा रहे हैं और भारत का दूसरा खिलाड़ी 27 के स्कोर पर आउट हो गया। And that's also going to be the time for the drinks break to be taken as well. Rohit Sharma, who made 83 in that first innings, his highest score in an overseas test match for Rohit Sharma in the first innings of this test, now departs, and India are in a spot of bother. Of course, effectively, you'll say Rohit Sharma, okay, he made 21, but India are 27 for 2. Effectively, with the scores level, you read that score as just 8 wickets left in hand, and India have to now put a run on the board in the second innings. 0 for 2. Exactly. 0 for 2. और ये विडंबना है कि सब यही सोच रहे थे यही होगा। सुबह सवेरे अगर इंग्लैंड जल्दी जल्दी विकेट ले लेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये उम्मीद थी कि बहुत कंसिस्टेंटली ये दोनों खेल रहे थे और कोई परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन इंग्लैंड को बड़ी उम्मीद थी कि भारत का प्रदर्शन बीच बीच में ना मालूम क्यों लचर सा हो जाता है। तो क्या जरूरत थी, एक स्ट्रोक मिल ही चुका था, रन उस पे बनी चुके थे, और जैसा कि आपने बखूबी बताया कि फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन पर, और आपको पता है कि आपको लगातार शॉर्ट गेंदें की जा रही हैं, ललचाती हुई, लुभाती हुई कि आप हुक करें, और आपको लेग साइड में बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर पे फील्डर मौजूद है, फिर भी आपने खेलने की कोशिश की, और हालांकि दर्शाया कि बैट में कुछ नीचे ज्यादा लग गई। तो यही कहना होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। भारत को चाहिए कि पिच पर डटकर जमकर खड़ा रहा जाए। Well, for the moment, there's a drinks break that's in progress. Time for us to quickly recap what's happened in India's second innings. Remember, KL Rahul and Rohit Sharma opened the batting for India again in the second innings. KL Rahul was the first to go, out for 5, having faced 30 deliveries. He was caught by the keeper, Josh Butler. When the ball pitched in the center of the wicket, then behind the keeper, and the third one behind the boundary. वेस्ली हॉल की चर्चा जारी रखेंगे प्रेम। So that is one such